Okay, good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, what we discussed in last lecture? Anyone have any idea? Simultaneous differential equation. Simultaneous. Yes, that means in last lecture we have completed our unit number 2. It is the higher order linear differential equation. Okay, so we already completed it with the last method, system of simultaneous differential equation, linear differential equation. So you can see on your screen we have completed this method 2.5. So this is our last topic of our unit number 2. So today we are going to discuss about the new unit. It is the unit number 3, and it is about the partial differential equations and application. So you already familiar with the differential equation. So in first unit we already talk about the what is the definition of differential equation. So anyone have any idea? डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते थे हम? सर जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो. But is there any condition on or any restriction on the independent variable, number of independent variables? No. Okay, so differential equation में आप ऐसा कुछ restriction नहीं था. लेकिन whenever you talk about the ordinary differential equation and then you talk about the partial differential equation, then there is a restriction on the dependent and independent variables. Okay, yes or no, everybody? Yes, sir. So there are two types of differential equation. Number one is ordinary differential equation and number two is partial differential equation. See, we already discussed about the ordinary differential equation in unit number 1 and unit number 2. Now unit number 3 is totally about the partial differential equation. So this is about the topic. Okay, and the applications. We also discussed three applications of the partial differential equation. So there are main three applications: Laplace equation, wave equation, and heat equation. So we will discuss about the solution of these three differential equation. That is the second part of our unit number 3. It is application oriented. Okay, so partial differential equation, an equation containing one or more partial derivatives. You can see here one or more partial derivatives of an unknown function of two or more independent variables is known as the partial differential equation. Okay, ordinary differential equation में क्या था, यहाँ पे जो टू और मोर लिखा है उसकी जगह पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट dy बाई डी एक्स. सो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स था या फिर dx बाई dy या फिर dy बाई dt. ओके, सो वी ओनली consider one independent variable in the ordinary differential equation, but in partial differential equation you can consider two or more independent variables. That's why it is known as the partial, and due to the differential equation it is known as the partial differential equation. So you can see there are four examples listed down here. First one is del square u by del x square plus del square u by del y square is equal to 0. It is known as the Laplace equation. Del square u by del t square is equal to c square. Del square u by del x square, wave equation. Del u by del t is equal to c square. Del square u by del x square, it is heat equation. And these three equations are very useful in real life situation as well as your engineering branches also. And fourth one has no name, but it is also the partial differential equation. So del u by del x whole square plus del cube u by del y cube minus 2x del u by del x is equal to 0. So this type of differential equations are known as the partial differential equation. So is there any doubt, any question in this slide? Anybody? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. In first unit, after that we discuss about the order and degree of the differential equation. So that concept is carried forward also here. But before that, first we talk about the notations. So there are few notations in the partial differential equation, and it is considered at everywhere. Means मैथमेटिक्स में वी आर यूजिंग ये सारे जो सिंबल्स हैं बार बार यूज करेंगे ये यूनिट के लिए, और पार्शियल के लिए तो हम बहुत ही यूज करते हैं. तो when we consider the case of two independent variables, usually assume them to be x and y and assume z to be the
dependent variable. That means we are considering this type of form, z is equal to f of x y in whole unit. Okay, तो ये पूरे यूनिट में हम इस टाइप का फॉर्म कंसीडर करेंगे. तो इफ यू डिफरेंशिएट दिस डिफरेंशियल दिस फॉर्म, दिस रिलेशन with respect to x, so it is the p, small p, you can say it is p. Okay, और ये यूनिवर्सली ये यूज करते हैं, है ना. तो जहां पर भी आपको पेपर में या कहीं पर भी स्टेटमेंट में स्मॉल p दिखाई दे, then you have to understand this is the differentiation of z with respect to x, partial differentiation. Okay, understand everybody? Yes, sir. Same, del z upon del y, it is considered as q, small q. If you take del square z upon del x square, then it is r. Del square z upon del x del y, it is known as the s, and del square z upon del y square, it denotes by t. Okay, so p, q, r, s, t, these are the symbolically representation of the partial derivative of with respect to x and y respectively for first order and second order. So this is about the notation. And if you have, or if you extend this concept to the three variable, that means if you have any function u which is the function of x, y and z, then you can also find the partial derivatives for that. You already know about this in our first semester. Okay, so ux is equal to del u by del x, uy is equal to del u by del y, means this lower suffix x represents the partial derivative with respect to x, lower suffix y represents the partial derivative with respect to y, uz means del u by del z, uxx means del square u by del x square, uxy means del square u by del x del y, and so on. So this is the symbolically or notation for the unit number 3, or partial differential equation. So if I want to write this equation into the notation form, then how we can write this? So this is your uxx plus uyy equal to 0. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Now, and the second one is UTT. utt is equal to c square uxx. Very good. And ut is equal to c square uxx. Okay. And the last one you can say that ux whole square plus UY by Y. uyy y Y. minor is equal to, or is equal to भी लिख सकते हैं 2x US. Okay, so these are the notation form for the differential equation. So is there any doubt in notation? Anybody? The del square No. z by del x del y और del square z by del y del x का सेम नोटेशन है. सेम नोटेशन, ऐसे ही उसको बोलेंगे, है? ओके. Yes. जब भी z के साथ लेते हैं उसका यही फॉर्म है p q r s t, उसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन दिस वे zx, है ना, जो हम यूजुअल यूज करते हैं zy, इसे तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन इफ यू वांट टू राइट इट टू p q r s t फॉर्म, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस सिंबल्स फॉर दैट. ओके, डन. Yes, sir. Yes. Okay, so next, order and degree of partial differential equation. So it is same as the general order and degree of the differential equation. So what is the order of that differential equation? जब हम पढ़े थे तब क्या बोलते थे, order किसको बोलते थे? One. Order one. Yes, derivative dependent. Yeah, yes, means if you have the differential equation and in that differential equation highest derivative involves, and that highest time differentiation is known as the order of that differential equation, and the power of that highest derivative term is known as the degree of the differential equation. Same concept is carried forward here. So partial differential equation के लिए सिर्फ यहाँ पे differential equation की जगह पे partial आ जाएगा. So the order of a partial differential equation is the order of the highest partial derivative occurring in the equation. That means if you have the del q u by del x cube, then you can say that that differential equation has the order 3, क्योंकि उसके साथ maximum जो होगा
वही हमको ऑर्डर में लेना है. ओके, एंड सेम वे डिग्री, द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. मीन्स डिग्री जो मीन्स ये अगर आपका हाईएस्ट है तो उसके ऊपर जितना भी पावर है, जितना भी डिग्री है, that is known as the degree of that differential equation. So degree of the highest order derivative which occurs in it after the equation has been rationalized. Means rationalize करना है, that means you have to made free from the radicals and fraction. Means if you have the 1/2, then you have to first remove that 1/2 and then calculate your order and degree. Okay, so this is about the order and degree of the differential equation. So you can see here, for example, number 1, del u by del x whole square plus del u by del y whole square is equal to z by y del u by del y is first order and second degree partial differential equation. You can see here, what is the highest time differentiation in this equation? 1. Okay, and that term has the power maximum 2. So the degree of that differential equation is 2 and order is 1. Okay, second में क्या होगा देखो, del square u by del x square plus del square u by del y square is equal to u. So what is the highest time differentiation, partial differentiation? 2. Okay, so the order is 2 and the degree of that highest derivative is 1. 1. So the degree is 1. In third, can you observe here? Order 2. Yes, order 2. Order 2, because here highest differentiation is del square z by del x square. So order is 2 and that power of that term is 1. So you can say that the degree is 1. Okay. But in fourth में क्या होगा देखो, del square u by del x square is equal to 1 plus del u by del y raised to 1/2. So first you have to remove 1/2. So taking square both sides, so del square u by del x square whole square equal to 1 plus del u by del y. So now you can check your order and degree because there is no any rational or radical terms here. So what is the order of this differential equation? 2. Okay, and degree 2. degree be 2. Okay, so you can identify your order and degree from these two concepts, order and degree, okay, of any partial differential equation. So is there any doubt, any question in this slide? Anybody? No, sir. No, sir. Okay, this is same as the simple ordinary differential equation. Okay, next slide. You can say that, you can see here, there are two main concepts or there are two main sub part of this unit. First one is linear and second one is non-linear. Okay, so linear and non-linear partial differential equation. So we will discuss both these differential equation in this unit. Means how to solve the linear partial differential equation and how to solve the non-linear partial differential equation with the different methods. So linear means आपको पता ही है, what do you mean by linear? Degree 1. Degree 1. 1. Yes, डिग्री 1 होने से वो लीनियर नहीं होगा. दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट है, मीन्स अगर आपके पास del u by del x है तो उसका डिग्री तो 1 है, लेकिन बट इफ यू मल्टीप्लाई विद del u by del y also, then it will be linear or not? No, because यहाँ पे क्या हुआ देखो, जो डिफरेंशिएशन था उसका पावर यहाँ पे ईच टर्म अगर आप चेक करो तो इसका टोटल 2 हो जाएगा ना ऑर्डर. Yes. है ना. और अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक बढ़ गया है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आप डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे वो फॉलो नहीं होगा. तो देखो लीनियर की डेफिनेशन ऐसे बनता है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इटसेल्फ एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, मींस दोनों में से कोई भी अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, मींस दोनों वो फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए. एंड सेकंड जो है वो नॉट मल्टीप्लाइड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मींस यहाँ पे u जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ना. तो del u by del x del u by del y है, तो यहाँ पे
दोनों ही दोनों टर्म का यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन लिया है। तो इस टाइप का फॉर्म अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में है, देन यू कैन से दैट इट इज द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अंडरस्टैंड? तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए एंड उसके सभी के पावर और सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए। दैट there are two conditions to make a linear differential equation. Understand everybody? सर डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, हमने तो यहाँ पे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। हाँ, डेरिवेटिव्स में Yeah. डिपेंडेंट आया ना, लेकिन डिपेंडेंट तो आप देखो, फॉर एग्जांपल डेल यू बाय डेल एक्स है, ओके, तो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स है इनटू डेल यू बाय डेल वाई किया आपने, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे वो वेरिएबल तो होगा कि नहीं, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे एक्स एंड वाई आया है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यू तो 2 बार आया ना, यस है ना, तो वो भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा ना, u इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, देन इट इज नॉट वैलिड फॉर लीनियर, बट Yes. इट, है ना, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए एंड ऐसे भी नहीं होना चाहिए, देन यू कैन से दैट इट इज द लीनियर। और दूसरी कंडीशन, द डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हैज द 1। ओके, तो ये दोनों ही दोनों कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होगी, तब हम उसको लीनियर बोलेंगे। नाउ इज इट क्लियर? Yes. यस Yes, sir. Okay, and second, a partial differential equation which is not linear is called non-linear partial differential equation। मीन जो जो linear नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे, non linear या फिर not linear partial differential equation। okay, so यहाँ पे देखो एग्जांपल, y del u by del x plus x del u by del y is equal to x1। तो यहाँ पे देखो y and x मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन वो तो इंडिपेंडेंट है ना, तो नो इश्यू, Yes. है ना, इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। बट इफ यू हैव द फॉर्म लाइक एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल 2 टाइम्स हो गया, इसलिए वो नॉन लीनियर में चला जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? Yes. यहाँ पे u स्क्वायर होता ना, सिर्फ यहाँ पे u की जगह पे u स्क्वायर, देन इट इज आल्सो नॉन लीनियर। क्लियर? यस सर। ओके, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन लीनियर एंड नॉन लीनियर? No, sir. Because they can ask the MCQ from this concept also. Okay, means आपको कोई differential equation दिया है and which of the following is form of this differential equation, तो आपको identify करना पड़ेगा ना वो linear है या non linear। हेलो सर। हाँ, यस यस, बोलो। हेलो हेलो हेलो, हेलो, am I audible clearly everybody? Yes. यस सर। यस सर। हाँ, तो सेल कहाँ गया? उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, कुछ बोले ना वो। ओके, सो इज देयर एनी यस सर, यहाँ डाउट? पे नेटवर्क इश्यू है ना, इसलिए आपकी वॉइस कट हो रही है। ओके ओके ओके, तो देख लेना ध्रुविल, आप अच्छी जगह पे पहुंच जाओ। ओके ओके सर, तो एक बार और। रिपीट करूँ? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस सर, एक बार रिपीट कर दो ना। ओके ओके, चलो। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मींस उसमें 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवाना है। नंबर 1, तो जितने भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उनका जो डिग्री है वो फर्स्ट ऑर्डर ही होना है, मींस फर्स्ट डिग्री ही होना चाहिए। एंड सेकंड कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं पर भी होना नहीं चाहिए, मींस u इंटू यू नहीं होना चाहिए या फिर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन यू कैन से दैट दैट इज द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जो लीनियर नहीं है उसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल में 2 टाइम्स नहीं है ना, और सभी का पावर जो है
सभी का जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए उसको हम लीनियर बोलेंगे। एंड सेकंड में यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उसमें यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल 2 बार्स इन्वॉल्व है, दैट मींस del u by del x del u by del y, that's why we can say that it is the non-linear. But if you have the is equal to u square, that it is also the non-linear, means यहाँ पे u into u हुआ, that is the 2 times different 2 times dependent variable, so you can say that it is the non-linear partial differential equation also. Okay, now is it clear? Okay sir. Okay sir. Okay, next फॉर्मेशन, जैसे हम फर्स्ट में किए थे यूनिट नंबर 1 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फॉर्मेशन के लिए क्या करते थे, तो बताएगा? हमने किया था पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, है ना? यस सर। है ना? तो जो किया ना वही यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, लेकिन वहां पे सिर्फ ये फर्स्ट मेथड ही था, मींस by eliminating arbitrary constant from the given relation. But in this unit, in this partial differential equation, there are 2 types of formation. Number 1, by eliminating arbitrary constant from the given relation, and number 2, by eliminating arbitrary functions from the given relation. Means यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल z is equal to ax plus by प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, यहाँ पे a एंड b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a b एंड c, सो यू हैव टू रिमूव दैट एंड डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सेम वे इफ यू हैव द फॉर्म f ऑफ x बाय y प्लस x प्लस y इक्वल टू 2, देन from this relation you have to remove f. This is the arbitrary function, so this is the second type of formation for the partial differential equation. So do you understand? यस सर। Okay. और ये arbitrary constant या arbitrary function को remove कैसे करेंगे, वहां पे कैसे किया था फर्स्ट यूनिट में? anyone have an idea? डेरिवेटिव। yes, derivative निकाल। yes, जितनी बार हो सके उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके हिसाब से हम प्रॉपर फॉर्मेशन लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक एडवांटेज है कि यहाँ पे z है, तो z का आप कितनी बार विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर कर सकते हैं? 2 बार कर सकते हैं, दैट मींस del z by del x भी कर सकते हो, del z by del y भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी था, dy by dx। ओके, अंडरस्टैंड? सर ये आर्बिट्री फंक्शन ऑर्डर में काउंट होगा? हाँ, ऑर्डर में होगा ना, आर्बिट्रेरी फंक्शन जितने हैं उतना अगर आपका ऑर्डर आता है तो उसको उतना या फिर उससे कम, तो उसको हम प्रॉपर फॉर्मेशन बोलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा करते हो दैट मींस इट इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेशन। यस। ओके, तो वो तो आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, मैं समझा ही रहा हूँ नेक्स्ट में। ओके, सो इज देयर एनी डाउट इन फॉर्मेशन ऑफ पीडी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन. First one is by eliminating arbitrary constant and second one is by eliminating arbitrary functions. Okay, everybody? यस। चलो फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1, derive a partial differential equation by eliminating arbitrary constant from the equation z is equal to x square plus a y square plus b. अगर मुझे स्टेटमेंट में ये नहीं दिया है, so how I can identify which method will applicable? By using this relation. Yes, यहाँ पे a and b constant है, तो आपको समझना है कि this is the method of eliminating arbitrary constant. Means everywhere आपको सब कुछ नहीं दिया होगा, तो you have to first understand which method will be applicable. Okay, everybody? Yes sir. Okay, so यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। Given that z is equal to x square plus a y square plus b, that is the equation number 1. Now differentiating equation 1 partially with respect to x and y respectively, means पहले हम with respect to x करेंगे, then with respect to y, so we get del z by del x is equal to, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, y square plus b तो उसके लिए कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज रहेगा। अब इसकी जगह पे हम नोटेशन यूज करें तो इट इज माय p, है ना, सो p is equal to 2x y square plus b
implies y square plus b is equal to p by 2x हो जाएगा, that is the equation number 2. अब यहाँ पे आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जब भी ऐसे ब्रैकेट वाले एग्जांपल आए तो उसमें आपको एक ही चीज करना है, कुछ भी करके ब्रैकेट को आपको सब्जेक्ट बनाना है. अंडरस्टैंड? दैट इज द स्मॉल हिंट. ओके, अब ये हो गया. विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए तो पूरा कांस्टेंट, तो उसको एज इट इज रखा. और y स्क्वायर प्लस b का हो जाएगा 2y, तो यहाँ पे इसका सिंबल हो जाएगा q. सो q इज इक्वल टू 2y x स्क्वायर प्लस a. सो इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 2y. दैट इज माय इक्वेशन नंबर 3. अब मेरे पास y स्क्वायर प्लस b का भी वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस a का भी वैल्यू है, तो कैन आई यूज इक्वेशन नंबर 1? यस सर. है ना. सो इक्वेशन नंबर 1 में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इजीली. सो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, q बाई 2y, एंड y स्क्वायर प्लस b की जगह पे p बाई 2x. सो यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू q बाई 2y इंटू p बाई 2x. So we will get 4xyz is equal to pq. So is there any a and b in this relation? Oh, sir. No. Okay, so that means you can say that this is the required partial differential equation by using the eliminating arbitrary constant. So is there any doubt in this example? Anybody? सर ये टॉर्क इक्वेशन भी डिराइव हो सकती है. Sorry? सर डेल z बाय डेल x को है ना विद रिस्पेक्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना तो एक और इक्वेशन भी मिलेगी. लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा ना. तो बट कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे. कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेशन मैंने बोला ना, प्रॉपर फॉर्मेशन किसको बोलते हैं कि जिससे मिनिमम आप डेरिवेटिव यूज करो, है ना, और उससे रिलेशन बनाओ. अंडरस्टैंड? इसका फिर से आप फाइंड करेंगे तो वो तो सेकंड ऑर्डर में चला गया ना. तो बस जितने कांस्टेंट है उतने तो डेरिवेटिव कर ही सकते हैं ना. डेरिवेटिव कर सकते हो, यू आर राइट, लेकिन यहाँ पे आपने ऑलरेडी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन तो यूज कर लिया है. इज इट क्लियर? अगर इससे काम नहीं बनता है देन यू गो फॉर द नेक्स्ट. ओके, यहीं पे हमको मिल जाता है तो खामखा आगे जाने की क्या जरूरत है. वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा. वो फॉर्मेशन तो आप बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वी आर रिक्वायरिंग द प्रॉपर फॉर्मेशन. ओके, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेशन होगा तभी हमारी सिस्टम फुलफिल होगा, और सिस्टम फुलफिल होगा तो उसका सॉल्यूशन जो है वो वर्कआउट होगा. क्लियर? यस सर. है ना. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल a एंड b दो कांस्टेंट हैं, तो हमने ऑलरेडी 2 बार तो डिफरेंशिएशन उसका यूज कर ही लिया है. तो कैन वी अरेंज सम रिलेशन फ्रॉम दिस? अगर इसके नहीं अरेंज कर सकते देन यू गो फॉर द नेक्स्ट. ओके, डन. और हो ही सर इस जाएगा. इक्वेशन में तो सर डेरिवेटिव सॉरी, जो हमें इक्वेशन मिली 4xyz सर उसमें हाँ. डेरिवेटिव भी कहाँ पे है? अरे ना, क्या बात कर रहे हो. यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो 4xyz इज इक्वल टू डेल z बाय डेल x इंटू डेल z बाय डेल y. नाउ यस सर. है ना, p एंड q तो ऑलरेडी डेरिवेटिव टर्म है. वी आर यूजिंग नोटेशन फॉर दैट, नथिंग एल्स. यस. है ना. तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड दिस इज आल्सो द पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि वी आर यूजिंग p q r s t एज ए नोटेशन फॉर दैट. ओके, डन. यस सर. है ना. और यहाँ पे देखो ये नॉन लीनियर होगा ना, या लीनियर होगा? नॉन लीनियर. नॉन लीनियर. ओके, वेरी गुड. चलो एग्जांपल नंबर. नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन इन एग्जांपल नंबर 1? एनीबॉडी? हाँ. Sure. Example number 2. Eliminating the arbitrary function g from the relation z is equal to y square plus 2g 1 upon x plus log y. यहाँ पे देखो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है तो ऊपर भी you can say that here z is the arbitrary function. Understand? क्योंकि z is the function of x and y. देखो यहाँ पे x and y का फंक्शन एक ही नहीं. यस. यस. है ना. Yes. यहाँ पे जो g है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है. तो यहाँ पे देखो जो गिवन रिलेशन है वो यहाँ पे z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2g 1 अपॉन x प्लस लॉग y. सो उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. अगेन हम क्या करेंगे, देखो अब जब आर्बिट्ररी फंक्शन दिया है ना, तब एक ही हमारा टारगेट रहेगा कि उसका जो डिफरेंशिएशन है उसको सब्जेक्ट बनाओ.
है ना। उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस टाइप का फॉर्म मिल जाएगा। देखो a इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू बी, देन यू कैन से फ्रॉम बोथ द रिलेशन a इज इक्वल टू सी। यस और नो? यस है ना। तो यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में। हेलो। सो यस यस, एनी प्रॉब्लम? Is there any problem? Am I audible clearly, student? यस Yes, सर। sir. Okay. So differentiating equation 1 partially with respect to x and y, okay, respectively, we get first differentiate with respect to x. So del z upon del x is equal to, यहाँ पे देखो with respect to x करेंगे तो इसका 0 हो गया, so 0 plus 2g dash। अब ये जो ब्रैकेट है ना उसको आप रिमूव मत करना, नहीं तो आप फिर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 1 upon x plus log y as it is, बट अब चेन रूल के हिसाब से ब्रैकेट का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई का 0। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, सो डेल जेड बाई डेल एक्स को तो हम p बोलेंगे। सो p इज इक्वल टू 2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर जी डैश 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। अब जी डैश वाले को आपको पूरा सब्जेक्ट बना लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x स्क्वायर p डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जी डैश 1 upon x plus log y. That is the equation number 2. Now same way we can define del z upon del y. So del z upon del y is equal to 2y plus 2g dash 1 upon x plus log y, and here 1 upon x का 0 हो जाएगा and log y का 1 upon y हो जाएगा. So you can arrange here. So q is equal to 2y plus 2g dash 1 upon x प्लस लॉग वाई इंटू 1 अपॉन वाई। अब इसमें से मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है जी डैश को। तो यहाँ पे देखो y बाई 2 है ना, क्योंकि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा q माइनस 2y, और उसके साथ मुझे ये y 2 बाई वाई है उसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो y बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू जी डैश मिल जाएगा मुझे। यस और नो? यस सर। है ना। तो यहाँ पे मुझे मिला y बाई 2 q माइनस 2y इज इक्वल टू जी डैश 1 upon x plus log y। that is the equation number 3। अब equation number 2 and 3 को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, a is equal to b, c is equal to b हुआ कि नहीं? तो कैन आई राइट a is equal to c? यस सर। है ना। तो यहाँ पे देखो -x स्क्वायर p बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 2 इंटू क्यू माइनस 2y। सो इट गिव्स मी, यहाँ पे 2 टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस है उसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सो x स्क्वायर p इज इक्वल टू, इसको आगे पीछे कर देता हूँ, दैट मीन्स 2y माइनस क्यू इंटू y। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x स्क्वायर p, ओके, हाँ, x स्क्वायर p इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस क्यू वाई, और इसको अगर आप p एंड q को साथ में लिखना चाहते हो तो x स्क्वायर p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड partial differential equation. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? नो सर। Okay, इसी हिसाब से हम करेंगे। जब भी आर्बिट्ररी फंक्शन दिया है तो हम उसके लिए हम ऐसे यूज करेंगे। ओके, तो पहले उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए ट्राई करेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, और उसके बाद उसको सेम है ऐसा हम बता देंगे। जब सिंगल है तब ये वर्क करेगा, जब डबल है तब तो थोड़ा डिफरेंट वे में करना पड़ेगा, और जब डबल है तब तो आपको सेकंड ऑर्डर तक भी जाना पड़ेगा। ओके, क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। यस यस बेटा, यस। आपको मैं वो थोड़ी आंसर में चलेगा, हमें तो पीक्यू दिया ही नहीं था क्वेश्चन में। सॉरी सॉरी, ये पीक्यू वाला आंसर आया ना हमारा, पी और क्यू वाला, हाँ हाँ हाँ, यस। वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना पी और क्यू। नहीं 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 नहीं, यूनिट नंबर 3 में हम पी क्यू आर एस टी वाले ही ज्यादा फॉर्म आपको दिखाई देंगे, देखना आप, है ना। तो हम पी क्यू में ही लिखेंगे। ओके, आपका जो स्टेटमेंट होगा जब हम सॉल्व करेंगे ना लीनियर एंड नॉन लीनियर, उसमें भी पी क्यू ही दिया होगा। हम उसके अलावा जो फॉर्म है वो तभी यूज करेंगे जब यू है या फिर दूसरा है, जिसके लिए हम पी क्यू आर एस टी यूज नहीं कर सकते। डन?
Yes, sir. Done. लेकिन जहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स है, डेल जेड बाई डेल वाई है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर है, वहाँ पे हम पी क्यू आर एस टी ही मेंशन करेंगे. ओके एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. ओके देन एग्जाम्पल नंबर 3, ये थर्ड मेथड है फॉर्मेशन में. देखो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करने के लिए सीधा था कि आपको यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और उसके बाद उसमें से रिलेशन बनता है तो बनाना है. ओके सेम तरीके से आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए किया हमने. अब उसमें भी हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और यहाँ पे हम उसका रिलेशन लेके आए. लेकिन ये थोड़ा पर्टिकुलर केस है क्योंकि ये लीनियर के लिए हमको मिलता है, इसलिए. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम. देखो यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपका ऐसे f ऑफ u v इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, sir. तो Yes, जब sir. भी आपको ऐसे फॉर्म दिया है तब आपको एग्जाम्पल नंबर 3 वाला मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो है उसका सॉल्यूशन मींस ये जो है ये सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर मींस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 और उसका फॉर्म फिक्स है pp प्लस qp इज इक्वल टू r. वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, वहाँ पे उसको बोलते हैं लाग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड, वो हम करेंगे. लेकिन यहाँ पे उसका फॉर्म है फिक्स pp प्लस qp इज इक्वल टू r. जैसे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या लेते थे हम, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q लेते थे कि नहीं, Yes, sir. है ना? ऐसे ही Yes, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है और उसका जो सॉल्यूशन है वो ऑलवेज इस फॉर्म में आता है f ऑफ u v इज इक्वल टू 0. तब ये जो फॉर्म है उसमें हमको p q एंड r फाइंड करना है और p q r फाइंड करने के लिए हम इस टाइप का हम यूज करेंगे और वो फाइंड करके उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट अवर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये गलत डिफरेंशियल, ये सही है. ओके तो हम करते हैं पहले से. देखो तो गिवन दैट f ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. तो एक जो है उसको मैं u बोल दूंगा, सेकंड जो है उसको v. सो लेट u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू z माइनस एक्स वाई, देन f ऑफ u v इज इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. अब u एंड v का 3 वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशिएशन. कौन कौन से? विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z. सो डेल u बाय डेल x क्या हो जाएगा इसके लिए 2x, डेल u बाय डेल y 2y, डेल u बाय डेल z, यहाँ पर z है ही नहीं, दैट मींस 0, डेल v बाय डेल x माइनस y, डेल v बाय डेल y माइनस x, डेल v बाय डेल z 1. सो यहाँ पे वी हैव द 6 पार्शियल डिफरेंशिएशन. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. Okay, now from that we have to consider, first we consider that we know that the partial differential equation corresponding to equation 1, मैंने जैसे बताया ना कि ये उसका सॉल्यूशन है, उसकी corresponding अगर partial differentiation है तो यही है pp plus q2 is equal to r. दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे. वेर p, अब p जो है वो आपका जैकोबियन वाला जो फॉर्म था ना उसका हमको यूज करना है. तो यहाँ पे आपको एक याद रखने के लिए आपको एक टेक्निक बताता हूँ. तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिख रहा है, p इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस q इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू r. यस और नो? yes, तो यहाँ पे Yes, देखो, sir. यहाँ पे ऑलरेडी x यहाँ पे यूज हो चुका है, तो उसके अलावा कौन कौन से वेरिएबल बाकी बचे x y z में से? Y. y Y. z. तो यहाँ पे आपका Y. यस uv का yz विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन लेना है. दैट मींस डेल uv बाय डेल yz वो आपका p हो जाएगा. तो यहाँ पे आप डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z, डेल v बाय डेल y, डेल u बाय डेल z यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि ऑलरेडी आपने फाइंड कर दिया है. तो यहाँ पे 2y 0 माइनस x1 होगा. इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 0 हो जाएगा. सो अवर p विल बी 2y. क्लियर? yes, ओके. अब q Yes. q ओके सेकंड टर्म में q को ऑब्जर्व करो. तो q में कौन सा वेरिएबल ऑलरेडी यूज हो चुका है? Y. 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 तो y के बाद क्या आएगा? z. तो z एंड x. तो यहाँ पे देखो z एंड x. ऑर्डर को ब्रेक मत करना. अगर यहाँ पे किसी ने डेल xz लिखा तो आपका जो आंसर है वो माइनस से डिफर होगा. क्लियर? yes,
Yes. तो यहाँ पे ऑर्डर को मत ब्रेक करना, तो y के बाद z एंड x, तो यहाँ पे डेल uv अपॉन डेल zx हो जाएगा। सो डेल u बाई डेल z, डेल u बाई डेल x, डेल v बाई डेल z, डेल u बाई डेल x, यहाँ पे ये सब कुछ आपके पास है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 0 2x 1 माइनस y, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। एंड r के लिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो r जो है वो कहीं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो z के लिए है, तो वहां पे z नहीं आएगा, दैट मीन्स एक्स वाई आएगा। सो r इज इक्वल टू डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। सो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, उसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, सो 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होके यहाँ पे मेरे पास मुझे r मिल जाएगा। अब p q r हमारे पास है, तो सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी p एंड q वहां पे ही पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया, देखो, सो p की जगह पे 2y स्मॉल p माइनस 2x स्मॉल q इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। अब इसको यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, दैट मींस yp माइनस xq इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही फॉर्म को आप रखना। क्लियर एवरीबॉडी? इज देयर एनी डाउट? Yes. किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. No. Okay, chalo, let we go for our next example. Derive partial differential equation by eliminating arbitrary constants from the relation z is equal to ax plus y plus b. Okay, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम? Here जो दिया है वही लिखेंगे ना। Here given that z is equal to ax plus y plus b. So यहाँ पे मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, yes or no everybody? Yes, sir. So यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, इक्वेशन 1, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x and y रिस्पेक्टिवली। ओके, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन किससे? पार्शियली, है ना, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे विथ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to x and y respectively we get, so first मुझे मिलेगा del z by del x, और del z by del x को तो मैं यहीं पे p बोल दूं तो चलेगा कि नहीं, है ना? Yes, sir. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? a Yes, sir. Yes. x का 1 y Yes, का sir. 0 b का 0, so ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। एंड विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, सो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या होगा, तो उसको हम q बोलेंगे। सो यहाँ पे q और इसका विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो यहाँ पे मुझे अगेन a मिलेगा, ओके, क्योंकि Yes. x का 0 y का 1 b का 0, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 से मुझे कोई रिलेशन मिलेगा? मिलेगा कोई रिलेशन? Yes, sir. P is equal A to Q. equal to Yes, very good. So P is equal to Q. That is our required partial differential equation. So is it clear, everybody? yes. Yes, sir. Okay. Next example देखते हैं. So किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. यहाँ पे देखो, No, sir. कहीं पर P is equal to Q में कहीं पर भी A भी नहीं है, B भी नहीं। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड ही है, कुछ है नहीं, कोई ऐसा कुछ फिक्स मेथड नहीं है। फिक्स मेथड में मैंने आपको बताया कि ये 3 टाइप्स के वेरिएशन है, मींस यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इस हिसाब से PQR कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई स्पेशल मेथड नहीं है जिससे आप बोल पाए कि सर इसमें यही होगा। ओके, डन
एवरीबॉडी? यस ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए ट्राई करो तो सब, बाद में यहाँ पे देख लेना, वेरीफाई कर लेना। ओके, इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया। अगेन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to x and y respectively we get। कुछ लोग ये सेंटेंस से नहीं लिखते, दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर मार्क्स। ओके, ये अगर सेंटेंस नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। सो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा ए, यहाँ पे इसका 0, इसका भी 0। वेरी गुड, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड सेकंड करते हैं डेल जेड बाई डेल वाई। सो डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो यहाँ पे इसका 0, यहाँ पे 2a स्क्वायर वाई प्लस b का तो 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 कुछ बोल पाएंगे? Yeah, q equal to p square 2y. Yes. Okay. So 2a from p square. equation 2 and 3 we get, okay, what we get? p is equal to a, है ना? ओके सॉरी, नो इसका नहीं, 2 का यूज करते हैं और उसमें एक ही जगह पे हम वो कर देंगे। सो यहाँ पे सॉरी यहाँ छूट गए, 1 मिनट, यहाँ पे q लिखना भूल गए हम, इक्वल टू q इक्वल टू, यस, सो वी हैव द q इज इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई। अब एक ही जगह पे मैं p को रिप्लेस करूँ तो दैट मीन्स q इज इक्वल टू 2, यस, p स्क्वायर वाई। ओके, सो यहाँ कहीं पर भी a एंड b नहीं है, सो विच इज required partial differential equation। Okay, so is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No, sir. No, sir. No? Okay, चलो तो एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसके लिए आप ट्राई करना है। तो आई एम गिविंग दिस इन योर होमवर्क। ओके, क्लियर? तो लिख लो चलो, या फिर मैं इसको भेजने ही वाला हूँ, तो उसमें से भी आप देख सकते हो, या यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट ऑल्सो। इसके लिए ट्राई करना, ओके, सेम तरीके से ये, हाँ, तो देखेंगे हम, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा अगर नहीं हो रहा है तो। ओके, नेक्स्ट चलो, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। सो डिराइव अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो इसके लिए मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो क्या लिखूंगा? हियर गिवन दैट, सो हियर गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x and okay, partially लिखना भूल गए। So differential equation 1 partially with respect to x and y respectively we get, so first हम with respect to x करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 2x प्लस 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा देखो 2z माइनस सी इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. है ना? तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 2z माइनस सी इंटू पी इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कर पाएंगे हम? 2 कॉमन निकाल के, यस, 2 कॉमन निकाल सकते हो, उसके बाद कुछ कर सकते हैं हम। चलो इसको अभी कुछ नहीं करते हैं ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे z माइनस सी को वेरी बनाएंगे, वेरी गुड, सब्जेक्ट बनाएंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो x प्लस
z माइनस सी इंटू पी इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे हम कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, तो बाद में करेंगे। चलो यहाँ पे इक्वेशन 2 हमको जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, तो इसको इक्वेशन 2 मैंने बोल दी। एंड सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखो 2y प्लस अगेन 2z माइनस सी इंटू डेल z अपॉन डेल y, ओके, इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे मेरे Y पास plus अगेन y प्लस z माइनस सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 मिला, है ना। Yes. अब देखो यहाँ पे मैं अगर z माइनस सी को यहाँ पर भी सब्जेक्ट बना देता हूँ एंड यहाँ पर भी सब्जेक्ट बना देता हूँ, देन माय वर्क इज डन। ओके, Yes, sir. तो यहाँ पे अगर z माइनस सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ये x उस साइड पे जाएगा, सो माइनस एक्स बाई पी हो जाएगा। X by वेरी yes. गुड। और यहाँ पे z माइनस सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स सॉरी माइनस वाई बाई क्यू हो जाएगा। यस और नो, है ना। तो Yes, फ्रॉम sir. यस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ओके, इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई पी इज इक्वल टू माइनस वाई बाई क्यू इम्प्लाइज, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई पी, है ना। यस और नो एवरीबॉडी। Yes, sir. So this is the required partial differential equation, so which is required partial differential equation from that given relation. So is there any doubt, any question in this example, anybody? No, sir. No. Okay, so is there any doubt, any question in today's session, anybody? Sir. Yes, yes madam, yes बोलो। सर ये लास्ट समय से z भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। डिपेंडेंट है, मैंने बोला ना पूरे यूनिट में हम यही फॉर्म को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहां पर भी एक्स वाई जेड दिया है तब। ओके, तो सर मालूम कैसे पड़ेगा इट्स दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो? किससे? दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं सर? दो से ज्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए आपको मेंशन करके दिया होगा u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ओके ओके डन। Okay, now is there any doubt, any question, anybody? नो सर। Okay. Confirm yourself, everybody. No, sir. No, sir. sir. Okay, so